Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do journal entries with modern rules of accounting, taking every transaction in detail and touching very basics. Okay, so you know that I follow modern rules of accounting, and therefore, what acronym that I have made for the rules, which will be very easy for you to understand, is actually this was made by one of my students in the class, and I really liked it, so I'm sharing it with everyone. So, modern rules of accounting, we have five accounts. One is your capital, assets, liabilities, expenses and losses, and incomes and gains. These are the five accounts, and we have increase and decrease, and then we debit and credit it. Now, what I have done or my student has done is AELIC, which is quite easy to remember. AE is assets, expenses, and losses. L stands for liabilities, I stands for income and gain, and C stands for capital, right? So now, when there is an increase in AE, you debit it, and the opposite is what is happening with LIC, that if it is increasing, we are crediting it. So similarly, if AE is decreasing, we are crediting it, and if LIC is decreasing, we are debiting it. दोनों उल्टे चलेंगे. जब ये बढ़ेगा तो ये उसके लिए कम होगा, ये कम होगा, ये उसके लिए ज्यादा होगा. ठीक है? So AE, LIC and debit and credit rules of accounting. Okay. So whenever you are solving a question, just write somewhere these rules so that it becomes easy for you to understand and make journal entries, right? Let's start with a very basic journal entry, which is started business with cash of rupees 5,000. So this is the entry that we are given. So now, started business with cash, that means एक वर्ड जिसका हमें सबसे ज्यादा जब भी हम स्टेप्स करते हैं जर्नल एंट्री के, हमारे 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप टू फाइंड आउट द अकाउंट्स दैट आर अफेक्टेड. नंबर 2 टू सी इफ दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड अप्लाई द रूल्स. एंड फाइनली थर्ड, मेक द जर्नल एंट्री, राइट? इसमें स्टार्टेड बिजनेस में कौन से 2 अकाउंट हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, ये तो हमें सबसे पहले जानना होगा. तो कौन से 2 अकाउंट हैं जो सबसे पहले इसमें अफेक्ट हो रहे हैं? वन इज योर कैश एंड द अदर इज योर कैपिटल. कैश तो समझ आता है, इट इज बिकॉज इट इज स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 50,000. बट कैपिटल होगी, ये कैसे आप समझ आया? Whenever you have the word started business, इसका मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहले अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो दैट इज कैपिटल फॉर स्टार्टेड बिजनेस. सो नाउ डेबिट और क्रेडिट. व्हाट इज कैश? कैश इज एन एसेट. इफ एन एसेट इंक्रीजेस, बिकॉज पहले क्या था कैश? 0. अब कितना हो गया? 50,000 rupees. So when we are going from 0 to 50,000 rupees, that means cash is increasing. When an asset increases, it is debited. So cash account debit to capital account. Why? Because capital is a LIC के अंडर आ रहा है. अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या होता है? क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ये बेसिक फर्स्ट एंट्री है ऑफ योर जर्नल एंट्रीज. ठीक है, इफ आई ब्रिंग अ चेंज इन दिस जर्नल एंट्री एंड मैं ट्रांजैक्शन कर देती हूँ started business with cash of rupees 50,000, furniture of rupees 10,000, and building of rupees 20,000. I know the values are very less and it cannot really happen, but still, let's just do the question. And because here values are not relevant, what is important is journal entry बनाना. ठीक है? So started business का मतलब है सबसे पहले तो जोन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है. सबसे पहला स्टेप क्या है? टू फाइंड आउट व्हाट अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड. सबसे पहला जो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो है कैपिटल. व्हाई? बिकॉज स्टार्टेड बिजनेस वर्ड आ गया. इसके बाद कौन कौन से दिख रहा है? कैश अफेक्ट हो रहा है, फर्नीचर अफेक्ट हो रहा है, और क्या अफेक्ट हो रहा है? बिल्डिंग. ठीक है, ये सारे अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं. नाउ व्हाट आर दीज अकाउंट्स? यू हैव टू आइडेंटिफाई किस कैटेगरी के अंडर फॉल हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री बनाएंगे. सो सबसे पहला, कैश इज एन एसेट, फर्नीचर इज एन एसेट, बिल्डिंग इज एन एसेट. सो जब तीनों एसेट्स हैं और तीनों एसेट 0 से बढ़ रहे हैं तो बढ़ने के लिए क्या होते हैं? डेबिट किए जाते हैं. सो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट debit,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैपिटल। अब ये आप याद रखना, कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज द समेशन ऑफ व्हाट इज कमिंग ऑन द डेबिट साइड सब्ट्रैक्टेड द क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता तो हम उसमें से माइनस करते। फॉर दिस क्वेश्चन वी विल ओनली एड व्हाटएवर देयर इज इन द डेबिट साइड। सो यहाँ पे कैश कितने का है 50,000, फर्नीचर कितने का है 10,000 एंड बिल्डिंग कितने की है 20,000। सो टोटल कम्स आउट टू बी व्हाट 50, 60, 70, 80,000। This is the amount of capital. Explicitly the amount of capital was not given, but हमको पता कैसे लगाना है what is the amount of capital by adding whatever was there on the debit side. Okay. Now there is another version of it. अगर मैं इसके अंदर और बोल देती हूँ, चलो let me just do it here only. Started business with cash of 50,000, furniture 10,000, building 20,000. ठीक है, and एक और चीज बोल दी है क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 10,000। अब क्रेडिटर्स भी आ गए ना। व्हाट इज क्रेडिटर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू आर डूइंग अ जर्नल एंट्री आपको ये जरूर याद रखना होगा कि मेरा क्या है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये एक्सपेंसेस है, ये। अगर आप इन सब चीजों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं देन मेकिंग अ जर्नल एंट्री इज इम्पॉसिबल बाय योर मॉडर्न रूल्स और बाय ट्रेडिशनल रूल्स, व्हिचएवर वे। ओके, सो हियर यू हैव क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 रुपीज। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, टू क्रेडिटर्स। Why have I credited the creditors? Because creditors is a liability, and according to LIC, if a liability increases, it is credited. To creditors कितना है 10,000 rupees, and again to what? To capital, obviously. अब capital तो यहाँ पे आ रहा है, that we can see. But what? 50 plus 10, 60 plus 20, 80,000 minus 10,000. So यहाँ पे कितना आ जाएगा 7,000. And this is your what? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये नहीं है कि जो सिर्फ एसेट साइड है उसको ऐड करके लिख दो तो वो कैपिटल बन जाएगा। नो, इफ देयर आर एनी liabilities that are coming on the credit side of the journal entry, वो अमाउंट माइनस करेंगे एंड देन वी विल राइट द कैपिटल का बैलेंस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स मेक अनदर एंट्री वेयर वी हैव गुड्स परचेज्ड रुपीज 50,000. Now I am saying that I am purchasing goods worth rupees 50,000. Okay. Now when we have a scenario like this, तो जब भी आप सेल्स करते हो या परचेज करते हो, आप किस चीज की सेल या परचेज करते हो? जो आपका प्रोडक्ट होता है, the business that you're in, this is your purchases or those are your sales. In this kind of a situation where goods purchased for rupees 50,000 मुझे दे रखा है, तो मेरा कौन से अकाउंट, दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। पहला परचेजेस अकाउंट अफेक्ट होगा मेरा, और दूसरा कौन सा, whenever nothing is mentioned as to कैसे परचेज किया है, we will always consider it कि कैश में किया होगा। So purchases comma cash. So these are the two accounts. Clearly इसके अलावा मुझे और कुछ अकाउंट समझ नहीं आ रहा है। Why? Because मैंने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट अफेक्ट होता है? परचेजेस का एंड कैश। ओके, सो अब परचेजेस क्या है? Purchases is your expense. When expense increases, what do? Debit it. So purchases account debit to कैश। कैश क्या है? एक एसेट। अगर एसेट कम हो रहा है, अगर मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ तो मेरा कैश तो कम होएगा। इफ कैश इज डिक्रीजिंग व्हाट विल आई डू? आई विल क्रेडिट इट, बिकॉज एसेट व्हेन डिक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड। सो टू कैश अकाउंट 50,000 and 50,000. Right? Now there is another version of it. अगर मैं बोलूं goods purchased of rupees 50,000 for cash, will this journal entry change? Definitely not. Why? Because पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया था कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो कैसे किया गया होगा? डेफिनेटली इन कैश। बट अदरवाइज इफ इट इज एक्सप्लिसिटली रिटन कि कैश में किया गया है तो वो कैश में ही किया गया होगा। ऑब्वियसली वी विल नॉट कंसिडर कि हमने उधारी पे गुड्स खरीदे होंगे। यस, नेक्स्ट
Another journal entry that commonly children get confused is with goods purchased account is goods purchased rupees 50,000. If I am saying from Ram, अब मैंने ये बोल दिया, मैंने ये नहीं बोला कि दे आर परचेज्ड बाय कैश, मैंने ये नहीं बोला दे आर परचेज्ड, they are not, I have not mentioned anything. I have simply mentioned that goods have been purchased from Ram. अगर ऐसी सिचुएशन है और उसने किसी का नाम दे दिया है, be it a person or be it a company, राम लिमिटेड या राम ऐसे, तो अगर ऐसा दिया गया इसका मतलब गुड्स जो है वो उधारी पे लिए गए हैं. उधारी इज क्रेडिट. ओके, सो उधारी पे लिए गए हैं तो क्रेडिट पे लिए गए हैं. मैं ये नहीं बोल रही कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, नहीं. क्रेडिट एज एन इंग्लिश वर्ड, वो क्रेडिट पे लिए गए हैं या वो उधारी पे लिए गए हैं, ये हमें समझना है इससे. तो जब हमें उधारी पे लिए गए हैं तो कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? कैश अकाउंट? नो. अकाउंट एक तो उस बंदे का जिससे हमने लिया है और दूसरा परचेजेस अकाउंट होगी. किससे कनेक्ट हो रहा है ये? गुड्स से कनेक्ट हो रहा है. राइट. नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जहां पे कैश आना था वहां पे राम आ जाएगा. ऑब्वियसली परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू राम. जहां पे कैश आना चाहिए था वहां पे राम आ जाएगा. पर इसके बिहाइंड की जो कहानी है वो क्या है? गुड्स परचेज करे, मैंने गुड्स परचेज करे हैं तो मुझे पैसे पे करने थे. क्लियरली आई हैव नॉट पेड फॉर देम. इफ आई हैव नॉट पेड फॉर देम दैट मीन्स वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी. दैट आई हैव टू पे देम इन द फ्यूचर. इफ आई हैव टू पे देम इन द फ्यूचर, वो हमारी लाइबिलिटी है. तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट. और क्रेडिट में मैंने लिख दिया टू राम अकाउंट. कितने से? 50,000 रुपए से. Clear? So there are three versions that we have done up till now. Goods purchased. If simply goods purchased is written, तो आप क्या करोगे? Goods purchased, it will be done in cash. Goods purchased by cash, तो मतलब कैश में ही बोला हुआ उन्होंने, तो कैश में परचेज किया जाएगा. अगर उसने लिख दिया goods purchased by Ram, from Ram, इसका क्या मतलब है? कि राम से हमने उधारी पे गुड्स लेके आए हैं. अगर उधारी है हमारी तो हमारी वो क्या है? लाइबिलिटी है. अगर लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट होगी. क्यों? क्योंकि जब लाइबिलिटी LIC के अकॉर्डिंग जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट. ओके, सो हियर यू हैव परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम. अब एक और वर्जन, छोटा चौथा वर्जन है, छोटा सा वर्जन है. गुड्स परचेज रुपीज 50,000 फ्रॉम राम फॉर कैश. अगर अब मैंने नाम भी दे दिया, मैंने कैश भी दे दिया, अब क्या? अब अगर उसने एक्सप्लिसिटली लिखा है कि कैश में ही ट्रांजैक्शन हुआ है तो कैश में ही हुआ होगा. वो ट्रांजैक्शन कैश में ही हुआ होगा, राम में नहीं हुआ होगा. तो उसके नाम का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं. राम, that name is only given for information purpose. That's it. So whenever you are given फॉर कैश, अगर एक्सप्लिसिटली किसी के साथ भी लिखा है तो वो मान के चलेगी कि वो कैश में ही हुआ होगा. ठीक है ना. एक और चीज बहुत बढ़िया जो मेरे को काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों को, दैट स्टूडेंट्स आस्क मी, मैम व्हाट इफ, एक एंट्री में लिख देती हूँ, फर्नीचर परचेज रुपीज 50,000. ठीक है, फर्नीचर परचेज किया 50,000 रुपए में. तो अब यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? माइंड यू, यहाँ पर सिर्फ गुड परचेजेस अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा अकाउंट होगा? फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट. नो व्हाई? ये भी तो परचेज किया था, गुड्स भी परचेज किए थे, फर्नीचर अकाउंट क्यों आ गया? क्योंकि परचेजेस सिर्फ उस गुड का होता है जिसमें हम, हमारा बिजनेस है, जिसमें हम डील कर रहे हैं. परचेजेस और सेल सिर्फ हमारे गुड्स के लिए यूज होता है. Because actually in a business, those are our purchases, na? Because we are purchasing raw material, we are converting it into finished good and we are selling it. But furniture purchases over the period of time, मुझे बीच में लगता है that yes, I need to buy a sofa for my factory or somewhere for my office. तो वो क्या है? वो आपने एसेट को खरीदा है. अगर एसेट पहले 0 था, अब एसेट बढ़ के कितना हो गया मेरा? 50,000 रुपए. फर्नीचर पहले था नहीं, अब 50,000 रुपए बढ़ गया है, तो क्या लिखेंगे हम? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा ये एसेट है और मेरा एसेट 0 से बढ़ गया है. तो क्या अकाउंट? कैश अकाउंट. अब क्यों भाई कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट किया? सिंपली बिकॉज
कैश मेरा एक एसेट है और एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट. ठीक है. सो नेवर कंफ्यूज इट कि हमने कुछ भी परचेज किया, मान लो हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो भी उसमें परचेज आएगा क्या? नो. ओनली परचेजेस इज रिटर्न फॉर गुड्स परचेज. अदरवाइज उसके अलावा जो भी चीज हम परचेज कर रहे हैं उसी अकाउंट का नाम डेबिट होगा. ओके. Now, one more entry, just like this. Goods sold of rupees 10,000. अब मैंने क्या किया, मैंने गुड्स बेचे. ठीक है. गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 10,000. अब कुछ मेंशन है इसमें? नो. तो गुड्स किस में बेचे करे होंगे हमने? कैश में. When nothing is mentioned कि कैसे गुड्स बेचे हैं तो वो हमेशा कैश में ही हुआ होगा. ओके. सो कैश अकाउंट डेबिट. Why are we debiting cash account? Because कैश एक एसेट है. अगर गुड्स बेचेंगे तो मेरा एक ऐसा एसेट कैश है जो बढ़ रहा है. सो अगर वो बढ़ रहा है तो क्या होगा? डेबिट. ओके. सो कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू सेल्स अकाउंट. जब भी हमारा गुड्स हम बेच रहे हैं या हम सेल कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है? सेल्स अकाउंट. ठीक है. अगर खरीद रहे हैं तो परचेजेस, पर अगर बेच रहे हैं तो क्या? सेल्स. सो सेल्स. अब another version of it, goods sold of rupees 10,000 for cash. If this is the scenario, कुछ बदल रहा है इसमें. पहले हम यही चीज अज्यूम कर रहे थे, अब हम यह चीज मान रहे हैं कि हाँ कैश में होगा, इंफॉर्मेशन दे दी हमको. तो हमारा इस सिचुएशन में दो एसेट्स जो दो अकाउंट्स हैं वो सेम रहेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला. ओके. नाउ another scenario. Goods purchased of rupees 10,000 from राम. अब मैंने राम से परचेज नहीं, गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ रुपीज 10,000. मैंने गुड्स बेचे किसको? राम को. हैव आई मेंशन इट फॉर कैश? नो, आई हैव नॉट मेंशन इट फॉर कैश. इसका मतलब क्रेडिट पे गुड्स बेचे होंगे. माइंड यू, क्रेडिट यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में बोल रही हूँ कि उधारी पे गुड्स मैंने बेचे होंगे. अभी मेरे पास पैसा उसका नहीं आया. अगर मेरे पास उसका पैसा नहीं आया और मेरे पास उसका पैसा आना है, सो व्हाट इज इट? इट इज एन एसेट फॉर मी. कल को भी पैसा मिलेगा तो क्या है? मेरा एसेट है. अगर मेरा एसेट है तो मेरा क्या होगा? ये एसेट बढ़ रहा है, क्या होता है? डेबिट. सो राम अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स. एज सिंपल एज, राइट? अब फोर्थ वर्जन, goods sold of rupees 10,000 from Ram for cash. अब उसने मुझे सिंपली कैश बोल दिया तो फिर क्या होगा? राम आएगा, कैश आएगा? यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा. बिकॉज एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि भाई कैश में किया, राम इज ओनली गिवन फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, दैट्स अबाउट इट. यहाँ पे क्या आएगा? कैश. ओके. नाउ ये चीज समझ आ गई कि राम क्या है. अगर कभी भी समझ ना आए कि भाई डेबिट होना है क्रेडिट होना है सेल्स परचेज के साथ तो क्या किया जाएगा, हमेशा इस रूल को मान के चलो कि सेल्स के साथ हमेशा, सेल्स क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला अकाउंट डेबिट ही होगा. अगर वो डेबिट ही होगा तो वो मेरा क्या ही होगा? डेटर ही होगा. और अगर परचेजेस है तो अगर परचेजेस डेबिट होते हैं तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होगा. और अगर क्रेडिट ही होगा तो वो हमारा क्या होगा? क्रेडिट. अगर कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा हो रही है तो इसको गोल्डन रूल मान लो और इसी के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर देना. ठीक है. whatever the name that is given to you, if this is a sales question तो तुम ऊपर क्या डेबिट क्या कर दोगे? उस बंदे का नाम, राम लिमिटेड अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो, या फिर राम और श्याम और whatever. अगर परचेज है तो क्रेडिट कर देना. ठीक है. Okay, now another entry, salaries paid.